السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. وہ اس وقت کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا. شفا صاحبہ اس کے سامنے پرسکون بیٹھے ہوئی تھی اور اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی. کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی ہے؟ وہ حلق کے بل تھاڑا تو وہ اپنے کانوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے بولی، پلیز تھوڑا آہستہ بات کریں، میرے کانوں میں درد ہونے لگا ہے. زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو جان سے مار دے. تم یہاں پر کیسے آئیں؟ آپ کی جیب میں چھپ کر. اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، یا میرے اللہ مجھے صبر عطا فرما. لڑکی اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس بار تمہارے بابا جان سے کہہ کر تمہیں امریکہ واپس بھجوا دوں گا. آپ ایسا نہیں کر سکتے زاویار صاحب. اس نے نگاہیں گھماتے ہوئے کہا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ابھی تم مجھ سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہو. اگر آپ نے حویلی والوں کو یا پھر میرے گھر والوں کو میری اس حرکت کے بارے میں بتایا تو میں بھی ان کو کہہ دوں گی کہ آپ کو چودھریوں کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے. زاویار کے چہرے کی رنگت یکدم ہی بدل گئی تھی. تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ آپ ابھی ٹھیک طرح سے مجھے جانتے نہیں. حویلی کے ایک ایک آدمی کا راز میری مٹھی میں ہے. پتہ نہیں وہ کون سا برا وقت تھا جب دادو جان نے تمہیں واپس حویلی میں لانے کا فیصلہ کیا تھا. زاویارہ بے چینی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا. تمہیں پتہ ہے تھوڑی ہی دیر میں باسم خانزادہ یہاں پر پہنچ جائے گا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا. تو ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کر ان سے ملاقات کریں گے. ویسے بھی میں نے ان کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ وہ حد سے زیادہ کھڑوس ہیں. میں بھی تو دیکھوں. لڑکی ابھی تم ان سے ملی نہیں ہو، اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو. جس دن تمہارا ان سے ٹاکرا ہو گیا اس دن کے بعد تم اسے چھپتی پھرو گی. زاویار اب کی بار تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا کیونکہ اس لڑکی پر غصہ دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. ابھی میں تمہیں پچھلے دروازے سے باہر نکالتا ہوں. نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. تمہارا دماغ سچ مچ میں خراب ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ کہ یہاں پر تمہیں تمہارے کام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا براہ راست اس سے سوال کر رہا تھا. میں بس دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈیرے پر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے سنا ہے آپ یہاں پر مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے سارے امپورٹنٹ فیصلے مشورے لیتے ہیں. میں بس وہی پروسیجر دیکھنا چاہتی ہوں. اسے اب شفا کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا. سب سے پہلے میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا اور وہاں پر تمہیں کسی اچھے سائیکالوجسٹ کو دکھاؤں گا. مجھے تمہارا مسئلہ نفسیاتی لگ رہا ہے. یہ کہہ کر زاویار نے آپ کی بار اس کی بازو مضبوطی سے پکڑے اور اسے حویلی کے پچھلے حصے سے باہر لے گیا. اس نے ڈرائیور کو آواز دی تھی کہ بی بی صاحبہ کو بڑی حویلی واپس لے جاؤ. زاویار دوبارہ سے اپنے ڈیرے پر واپس آیا جہاں پر باسم خانزادہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. کہاں پر رہ گئے تھے تم؟ کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا گارڈ بھاگتا ہوا ڈیرے کے اندر داخل ہوا. صاحب جی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کو یہاں سے بھاگتے دیکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ کون سی لڑکی؟ باسم خانزادہ بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا. کیونکہ ان کے ڈیرے پر صرف اور صرف مرد حضرات کا آنا جانا تھا. کسی بھی عورت کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی اور گارڈ اسے بتا رہا تھا کہ کوئی لڑکی اس ڈیرے سے باہر نکلی تھی. تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زاویار نے اسے بہلانا چاہا مگر وہ باسم خانزادہ کا خاص آدمی تھا. صاحب جی، میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا. وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور پتہ لگاؤ وہ کون تھی. کوئی بھی اس ڈیرے پر میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. زاویار کے چہرے کا رنگ یکدم ہی سیاہ ہو گیا. اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ جاتے جاتے بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی تھی. ڈرائیور گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا مگر وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی کیونکہ بچپن سے ہی اس کی عادت تھی. اس کو ہر چیز ہی ایکسپلور کرنے کا بہت شوق تھا مگر وہ یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں کا ماحول
अमेरिका के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर उसके बाबा के बहुत से फार्म्स भी थे और वो हर वीकेंड पर उनमें जाती थी और नेचर के साथ वक्त गुजारती थी। उसको इस हवेली में आए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे, मगर अभी तक वो हवेली से बाहर नहीं निकली थी। आज उसने फैसला किया था चाहे कुछ भी हो जाए वो बाहर जाकर रहेगी। अभी भी वो नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसने अपने पाँव नदी में डाले हुए थे, लबों पर मुस्कुराहट थी। मौसम बहुत खुशगवार था और आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में बारिश होने का इम्कान था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ हो। उसने निगाहें फेर कर देखा तो निगाहें पलटना ही भूल गई। उस इंसान को इसने सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, क्योंकि जब वो हवेली में आई थी तब वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री था और उसकी वापसी चंद दिन पहले ही हुई थी। मगर इस दौरान वो इसे हवेली में नहीं देख पाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता था। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? बासिम खानज़ादा ने आंखें छोटी छोटी करके उसके मासूम चेहरे को घूरते हुए कहा, जहाँ पर खौफ का अंदेशा नहीं था बल्कि शरारत फैली हुई थी। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बेहतर है कि अपने काम से काम रखें। उसने अपने बाल हवा में लहराते हुए लापरवाही से कहा। तमीज़ से बात करना तो उसने सीखा ही नहीं था और अपनी गलती तस्लीम करना उसकी फितरत में ही नहीं था। अभी और इसी वक्त उठो और मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बासिम खानज़ादा को अब के उसके रवैये पर हैरत हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। ज़ावियार खानज़ादा वहाँ पर आया और अपनी फूली हुई सांसों के साथ बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि ये साहिल चचा की बेटी है जो 2 महीने पहले ही पाकिस्तान आई थी। मैं इसको अपने साथ डेरे पर लाया था। इसको यहाँ पर आने का बहुत शौक था, मगर मैंने इसे ड्राइवर के साथ वापस भेज दिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो चहलकदमी करने के लिए यहाँ निकल आएगी। उसने सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया और आंखें छोटी छोटी करके उस लड़की को घूरते हुए कहा, जो इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठी हुई थी, इसको यहाँ से ले जाओ और तुम मुझे बाद में आकर मिलो। तुमसे तो मैं डिटेल में बात करूँगा। बासिम खानज़ादा ने दांत पीसते हुए कहा। ज़ावियार के चेहरे के तासुरात यकदम ही तब्दील हो गए थे। जानता था कि वो अपने बड़े भाई के गुस्से को हवा दे चुका है। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। यार प्लीज़ कोई गाना लगाओ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। ज़ावियार ने उसे आंखें तिरछी करके देखा। मुझे बताओ कि तुम एक जगह आराम से क्यों नहीं बैठती? पहले तुमने हवेली वालों की नाक में दम किया हुआ था। मुझे हर रोज़ तुम्हारी शिकायत मौसूल होती थी। हवेली के नौकरों तक का तुमने नहीं छोड़ा। मैं तो बस उनसे हंसी मजाक करती हूँ। उनकी अपनी गलती है कि वो मेरी हंसी मजाक को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। उसके लहजे में सदा की लापरवाही थी। जब वो हवेली पहुंची तो ताया जान बेचैनी से लाउंज में टहल रहे थे। तुम कहाँ पर थी? हम तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बेटा हवेली में इत्तला करके बाहर जाया करो। उसके ताया जान थोड़े से ओपन माइंडेड थे और वो हद से ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाते थे। यही वजह थी कि उसकी अपने ताया जान से बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन चचा जान उनके बारे में सोच कर ही इसका दम घुटने लगता। अभी 2 दिन पहले ही उसे दादी जान से ये बात मालूम हुई थी कि उसका रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि बासिम खानज़ादा के साथ तय था, और ये बात बचपन से ही क्लियर हो चुकी थी। उसको इसके मामा बाबा ने भी इसी वजह से पाकिस्तान वापस भेजा था ताकि इसका निकाह बासिम के साथ हो जाए। अभी उसे अपने अम्मी अबू की भी चालाकी समझ में आ रही थी। रात के वक्त भी जब उसने अपनी माँ को कॉल की तो वो बड़े मज़े से कहने लगी, मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम्हारा कहीं पर रिश्ता हुआ। मुझे तो लग रहा था कि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं लोग तुम्हारा नाम ही सुनकर भाग जाया करेंगे। वो तो ये सुनकर सदमे में ही चली गई और अब सोच सोचकर उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। पूरी रात वो इसी के बारे में सोच विचार करते रही और फिर जब उसको कुछ भी समझ नहीं आया तो वो ज़ावियार के कमरे की तरफ चल दी। अब क्या मसला है तुम्हें? तुम्हारी वजह से दिन के वक्त भी मेरी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई थी। आज से पहले मेरे बाबा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे हद से ज़्यादा जलील किया। वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा था। छोड़ो यार, इस तरह की छोटी मोटी बातें तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं।
मैं तुम्हें फारिया का नंबर ला कर दूंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो उसके सामने ही बेड पर चौकड़ी मारकर बैठ गई थी, यूं जैसे ये उसका अपना ही कमरा हो। जावियार को उसकी ये हरकत एक आंख नहीं भाई थी। वो तो उसे अपनी छोटी बहन की नज़र से देखता था, मगर बाकी किसी की वो गारंटी नहीं दे सकता था। और अगर वो किसी और के कज़न के कमरे में जाकर इस तरह की हरकतें करती तो ज़रूर उसकी इस बात को बुरा समझा जाता। पहले तो जल्दी से मेरे बेड से नीचे उतरो और लाउंज में चलो, मैं वहाँ पर ही तुमसे बात करूँगा। अक्लमंदी का मुजाहिरा यही था कि वो उसे लेकर बाहर चला जाए। मुझे बताओ कि तुम्हारे उस कज़न के रेड फ्लैग्स कौन से हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि उसकी बुराइयाँ कौन सी हैं, और मुझे ये भी बताओ कि उसको कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जहर लगती है। ओह, तो क्या मैडम साहिबा की तरफ उनके निकाह की खबर पहुँच गई? कसम से मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि बासिम खानजादा का तुमसे निकाह होगा। कम से कम तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर आएगा। तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? नहीं, मैं तो तुम्हें दुआ दे रहा हूँ। और जहाँ तक उसको तंग करने का सवाल है तो उसे लापरवाह लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, और ना ही उसे अपनी मनमानी करने वाली औरतें पसंद है। उस दिन जिस नज़र से वो तुम्हें देख रहा था, मुझे अंदाज़ा हो ही गया था कि तुम उसके नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में आ गई हो। वो ये बात उसको चिढ़ाने के लिए कर रहा था, मगर ये सुनकर वो खुशी से उछलने लगी। थैंक गॉड कि मैं उसके नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में आ गई हूँ। कम से कम उससे निकाह करने से तो बच जाऊंगी। ओह हेलो मैडम, उसकी पर्सनैलिटी देखी है तुमने? उसे निकाह करने के लिए गांव की सारी लड़कियां मरती हैं। तुम्हें क्या पता कि हमारे ख़ानदान में भी उसकी वजह से कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया था। जब दादी जान ने यह ऐलान किया कि वो इसका निकाह तुमसे करवाएंगी तो सारे लोग पुरसकून हो गए, मगर अभी भी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो अपने दिल में यह ख्वाहिश दबा कर बैठी हैं कि उन्होंने बासिम की ही दुल्हन बनना है। ये सुनकर वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। खैर, तुम्हारे कज़न में ऐसा भी कुछ नहीं जो मैं उस पर मरने के लिए तैयार हो जाऊंगी, और मेरी प्रायोरिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर तुम्हारी बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बासिम खानजादा की बात हो रही है। और तुम अब अपने आने वक्त के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो सारी हवेली वाले बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बासिम के राडार में आ चुकी हो, तुम उनकी मांग हो, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता कायम हो गया है। मैं इस तरह के किसी रिश्ते को नहीं मानती, क्योंकि इसमें मेरी मर्जी नहीं पूछी गई थी, और अगर किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैं साफ इनकार कर दूंगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जावियार ने एक नज़र उस पर डाली और फिर धीमे से अंदाज में मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। तुमने मुझे बताया नहीं कि उसको किस तरह की लड़कियां पसंद नहीं हैं। उसको तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। अब खुश हो जाओ। वो खुलकर मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो उसके सर में शदीद दर्द था। वो पूरी रात जागती रही थी। लाउंज में गई तो गहरी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। आज उसके कज़न्स वगैरह वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ज़्यादातर लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और कुछ लोग हमाद साहब के बेटे के निकाह पर गए हुए थे। उससे दादी जान ने पूछा था, मगर उसने बहुत ही खूबसूरती से इनकार कर दिया था। उसे एक सोफे पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अपने नाम की पुकार सुनकर उसने निगाहें उठाकर देखा। सामने ही वो दुश्मन जान खड़ा था, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में चमक लिए। वो ऐसे ही मुखातिब होते बोला, मेरे लिए कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अपना हुक्म सुनाकर वो वहाँ से जा चुका था और शिफा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मुझ पर हुक्म तो यूं चला रहा है जैसे मैं इसकी मुलाजमा हूँ। अगर मैंने इसके लिए चाय बना दी तो मेरा नाम भी शिफा नहीं। जब तक ये मेरे पास आकर रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक मैं इसका कोई काम नहीं करूँगी। वो शुरू से ही अपनी मनमानी करने वाली थी। किसी के हुक्म पर चलना उसने सीखा ही नहीं था। अभी वो कैसे उसकी बात मान सकती थी। बासिम खानजादा को बुक की स्टडी करते तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था, मगर अभी तक दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई थी। उसने मोबाइल उठाया और मुलाजमा को कॉल मिलाई। साहब जी, मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं।
मुलाजमा की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसकी फितरत थी कि जो चीज़ उसकी होती थी वो उस पर अपना हक जमाता था। उसने इस छोटी सी लड़की को अभी बहुत सी चीज़ों के बारे में समझाना था, उसे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताना था और उसे ये बावर करवाना था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो चिढ़ता है, ताकि वो दोबारा कभी उस तरह का काम ना करे। मगर वो लड़की तो उसके हाथों में नहीं आ रही थी। शिफा लॉन में टहल रही थी जब वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में देखते हुए खूनख्वार लहजे में बोला, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, मगर मैं आपका कोई काम करने की पाबंद नहीं हूं और ना ही मुझे आपके किसी काम में कोई दिलचस्पी है। घर में बहुत से मुलाजिम मौजूद हैं, बेहतर है आप उन्हीं से बात करें। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? जी बिल्कुल, उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिसमें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, ताकि आपके दिल में किसी भी किस्म की कोई खुशफहमी पैदा ना होती। हम दोनों का बहुत ही जल्द निकाह होने वाला है। बासिम खानजादा ने उसको बावर कराने की कोशिश की, मगर वो तो उस वक्त खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। इसीलिए लापरवाही का इजहार करते कहने लगी, आप अपने दिल को तसल्ली दे दे, हमारा निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आप जैसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती और ना ही मुझे आपकी ज़ात में ज़र्रा बराबर दिलचस्पी है। मेरी प्रायोरिटीज़ इन सब से बहुत मुख्तलिफ हैं। उसको लग रहा था कि हमेशा की तरह उसकी बात मान ली जाएगी। वो भी बहुत ज़िद्दी थी, अपनी मनमानी करती थी। तो फिर बहुत जल्द आपकी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। मैम शिफा, आपसे एक और बात करनी थी। अब अगर मैंने आपको पुराने बाग में जाते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बाग हमारे दुश्मनों का है। ये बात अपने इस छोटे से जहन में बिठा लें। अगर आपने अपनी वजह से हमारी हवेली की इज्जत पर आंच आने दी तो मैं आपको जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दूंगा। उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ वो मजबूत लहजे में कहकर वहां से जा चुका था। वो अपने धड़कते दिल को संभालती हुई वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इसको कैसे पता कि मैं वहां गई थी? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई। क्या वो मुझ पर नज़र रख रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो वैसे भी बहुत मसरूफ़ होता है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं। ज़रूर किसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, लेकिन मैं अगली बार एहतियात करूंगी। वो कहाँ बाज आने वालों में से थी। जब तक उसे ठोकर नहीं लगती थी तब तक वो अपनी मर्जी करती थी। शाम का वक्त था। तायाजान लाउंज में बैठे थे जब वो उनके साथ ही बड़े सोफे पर जाकर बैठ गई और मासूमियत से कहने लगी, तायाजान, आपको याद है कि आपने मुझसे एक वादा किया था? वो सवालिया अंदाज में उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। आज से पहले हवेली की किसी लड़की ने भी इस तरह से अपने बड़ों से सवाल जवाब नहीं किए थे, क्योंकि उसने एक लंबा अरसा इस हवेली से बाहर एक ऐसे मुल्क में गुजारा था जहां पर इन चीज़ों को अहमियत नहीं दी जाती। इसी वजह से हवेली वाले भी उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर देते थे। बेटा, सच बताऊं तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप बताओ, मैंने अपनी बेटी से क्या वादा किया था? मैं अभी भी अपना वादा पूरा करने को तैयार हूँ। आपने मुझे कहा था कि आप मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में करवाएंगे। वहाँ पर बासिम खानजादा भी बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। अचानक ही उसे खांसी शुरू हो गई। उसने एक तंजिया निगाह बासिम खानजादा पर डाली। इस सब की क्या ज़रूरत है? वो दांत पीसते हुए बोला था। क्या मतलब है आपका? आपका क्या दिल है कि मैं जाहिल रह जाऊं? फिक्र मत करो, तुम जैसे लोगों पर तालीम का भी कोई असर नहीं होता। ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया। तायाजान, आप देख रहे हैं कि ये मुझसे किस तरह से बात करते हैं। वो रोहांसी हो गई तो तायाजान ने बासिम को डांटा। आगा जान, आप जानते हैं कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। अब की बार वो संजीदगी से बोला। फिलहाल हवेली की किसी भी लड़की को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। आप मुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकते। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। बेवकूफ़ लड़की, तुम पर पाबंदियां नहीं लगा रहा। ये सब कुछ मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। चौधरियों के साथ हमारा झगड़ा हो गया है और वो बहुत जालिम लोग हैं। वो अपना बदला लेने के लिए किसी हद तक चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हवेली की किसी भी औरत पर कोई आंच आए। तो इन सब का मुझसे क्या ताल्लुक? उसने झुंझलाए हुए कहा। बासिम खानजादा का दिल कर रहा था कि इसके छोटे से जहन पर मातम करना शुरू कर दे,
मेरी बहन को उन लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की थी। हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं थे, वरना हम ये मामला जिरगे में लेकर जाते, और मुझे लगता है कि अभी भी वो इसी तरह की कोई हरकत करेंगे। तो आप उनके साथ बैठकर सुलह क्यों नहीं कर लेते? वो हमसे हमारी वो जमीनें मांग रहे हैं जिन पर उनका हक नहीं बनता, और तुम ये कह रही हो कि हम मुफ्त में सारी जमीनें उनके हवाले कर दें। उसके ज़हन में जावियार का बेचारा चेहरा घूम रहा था, जो कि चौधरियों की बेटी से ही मोहब्बत कर बैठा था। न जाने उसका क्या होगा, वो सोच कर रह गई। खैर, मेरा ये सबसे कोई ताल्लुक नहीं। आप उनको बता दीजिएगा कि मैं आपकी दूर की कज़न हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वो अभी भी लापरवाही का मुजाहरा कर रही थी। तुम इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। जब तक मामलात ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम इस हवेली के अंदर रहोगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेटा, वो जो भी कह रहा है तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा है, उसकी बात मान लो। ताया जान ने उसको समझाते हुए कहा तो वो पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो तो सोच रही थी कि पाकिस्तान जाकर बहुत एंजॉय करेगी। उसे हवेली का सिस्टम हमेशा से ही अच्छा लगता था। जब वो अपने कज़नों से सुनती थी कि वो सब लोग इकट्ठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। उसका दिल करता था किसी तरह से उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाए। पहले 2 महीने उसके बहुत ही अच्छे गुजरे थे। वो लोग काफ़ी इंजॉय करते रहे। लेकिन जब से बासिम खानजादा हवेली में वापस आया था, तब से उनकी इंजॉयमेंट भी ख़त्म हो गई थी। वो इन पर हद से ज़्यादा सख्ती करता। लड़के लड़कियों को आपस में ज़्यादा फ्री होने की इजाज़त भी नहीं थी, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। इस इंसान के साथ तो मैं वो सलूक करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा, और दोबारा कभी मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। वो उसे बदला लेने के लिए उसके कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने मुलाजमा से बासिम के बारे में पूछा था, तो मुलाजमा ने उसे बताया था कि वो हवेली में नहीं है, बल्कि किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर गए हैं। उसने बासिम के कपड़ों की अलमारी खोली, जहां पर एक से बढ़कर एक ब्रांडेड जोड़ा मौजूद था। उसने हाथ में पकड़े हुए डिफरेंट मार्कर्स निकाले और उसके जोड़ों पर निशान बनाने लगी। कुछ पर उसने कार्टून बनाए थे, कुछ पर वो ड्राइंग कर रही थी। उसकी सफ़ेद शर्ट्स तबाह बर्बाद हो गई। जैसे ही वो ये कारनामा सरअंजाम देकर पलटी, तो उसे लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि बासिम पीछे ही बाजू लपेटे खड़ा था। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हो गई, जबकि उसका वजूद भी खौफ से हौले हौले लरजने लगा। उसने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि वो पकड़ी जाएगी। उसने तो पूरी तैयारी की हुई थी। काश वो कमरे में दाखिल होने से पहले अच्छी तरह से जायज़ा ले लेती। जब वो उसकी अलमारी के सामने जाकर खड़ी हुई थी, तो बासिम ने उस पर एक नज़र डाली थी। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। उसे अंदाज़ा था कि वो लड़की कोई ना कोई गलत हरकत करेगी, और अब उसका कारनामा देखकर इसका बस नहीं चल रहा था। वो इस लड़की को उठाकर किसी ऐसी जगह फेंक दे जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। ये सब कुछ क्या है? वो हलक के बल धाड़ा तो वो बेचैन होकर पीछे की तरफ हटी, लेकिन अलमारी के साथ टकरा गई। अब फरार की कोई जगह नहीं थी। वो उसके ऐन सामने खड़ा था, और वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वो बुरी तरह से उसके चुंगल में फंस गई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में आने की और मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? तुम इस कदर बेवकूफ़ निकलोगी, मैंने कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे कपड़ों की तबाही कर दी। वो एक नज़र अपने कपड़ों पर डालता और फिर दूसरी नज़र छोटी सी लड़की पर डालता, जो किसी बड़ी आफत से कम नहीं थी। आपने भी तो मुझे सबके सामने डांटा था, तो इसका ये मतलब है कि तुम मेरे कपड़ों की तबाही निकालो। वो दोबारा से इतनी ऊंची आवाज़ में चीखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर बासिम थोड़ा सा नरम पड़ा। वो उसे रुलाना नहीं चाहता था, मगर उसकी हरकत भी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थी। मैं आपको सारे कपड़े दोबारा से ख़रीद दूंगी, उसकी ज़रूरत नहीं। अब ये सारे कपड़े तुम बैठकर धोगी, और जब तक इनके ऊपर से ये निशान गायब नहीं हो जाते, तब तक तुम इनको नहीं छोड़ोगी। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कुछ कहना चाहा, मगर बासिम के घूरने पर वो खामोश हो गई। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब वो सारे कपड़े उठाकर
लॉन्ड्री में ले आई। बासिम खानजादा भी उसके साथ ही था। वो वहाँ पर पड़ी एक चेयर पर पुरसकून अंदाज में बैठ गया। वो कीनातोज नज़रों से बासिम के चेहरे को देख रही थी। उसने तो सोचा था कि वो उसको तिगनी का नाच नचाएगी, मगर खुद ही बुरी तरह फंस गई। क्या बदतमीजी है! अगर इस तरह से चलता रहा, ये इंसान तो मुझे सारी ज़िंदगी रगड़ा देता रहेगा। मेरा इस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं अब हर हाल में यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती और ना ही इससे शादी कर सकती हूँ। हजारों तरह के ख्यालात थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसके हाथ भी जख्मी हो गए, मगर कपड़े फिर भी नहीं धुल रहे थे, क्योंकि उन निशानों को उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो फूट फूट कर रोने लगी, अपना सर घुटनों पर रख दिया। बासिम काफ़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर गहरी सांस खारिज करते कहने लगा, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। दोबारा कभी इस तरह की हरकत की तो इससे भी बुरा होगा। उसने ये काम करने से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि अगर वो पकड़ी गई तो क्या नतीजा हो सकता है, लेकिन बासिम ने उसे ये बावर करा दिया था कि नतीजा खतरनाक हो सकता है। सिर्फ एक बार मैं यहाँ से चली जाऊं, मैं दोबारा कभी इस हवेली में लौट कर नहीं आऊंगी, उसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते कहा। अगले 2 दिन यूं ही खामोशी में गुजर गए थे। हवेली में उसके निकाह की बातें हो रही थी। वो अपनी दादी जान के कमरे में पहुंची और चीखते हुए बोली, दादी जान, मैं इस घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, मगर कभी भी इस इंसान की दुल्हन नहीं बनूंगी। इसे निकाह करने से अच्छा है कि मैं किसी कुएं में छलांग लगाकर मर जाऊं। कम से कम मुझे अपनी मौत पर इतना अफसोस नहीं होगा जितना मुझे अपने आप को इस शख्स के हवाले करने पर होगा। वो जो बोलने पर आई थी तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान कि वो शख्स इसी कमरे में बैठा था। जब उसने निगाहें उठाई और साइड पर पड़ी कुर्सी पर देखा तो खौफ से लरज उठी, क्योंकि वो इंसान बाजू लपेटे मुतमईन अंदाज में उसके चेहरे को घूर रहा था। दादी जान, मैं आपसे इसकी इतनी लंबी ज़बान ही की शिकायत करने आया था। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ, अब मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूँगा। मैं इसकी उन हरकतों को सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब मज़ीद नहीं। दांत पीसते हुए वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। वो एक बार फिर से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। वो रोते हुए दादी के पास गई तो दादी ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तो उस दिन मैंने देख लिया था। वो चिढ़ते हुए कहने लगी, मैं इस खड़ूस इंसान से शादी नहीं कर सकती। अगर इससे निकाह किया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मेरी जान? क्योंकि दादी जान, ऐसा ही है। मैं इस इंसान से वाकिफ हो चुकी हूँ। वो अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी करता है। वो मेरी किसी बात को खातिर में नहीं लाता और ना ही वो मुझे कभी बाद में अहमियत देगा। तुमने कभी अपनी हरकतों पर गौर किया है? दादी जान ने उसे घूरते हुए कहा तो वो उनसे निगाहें चुराने लगी। तुम्हारे उससे मंगनी हो चुकी है और तुम दोनों का निकाह हर हाल में होगा। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त देगा? जब वो छोटा सा था तभी उसके जहन में ये बात डाल दी गई थी और वो अपनी चीज़ से दस्तबरदार होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, एक जीता जागता वजूद हूँ, वो बेचैनी से बोली। तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है और अब हर हाल में निकाह होगा। बेहतर यही है कि अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। ये कहकर दादी जान आंखें बंद करके दोबारा से तस्बीह का विर्द करने लगी। उसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि अब वो मज़ीद उससे बात नहीं करेंगी। उस दिन वो सोकर उठी तो बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसे बचपन से ही बारिश में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने अपनी कज़न को भी अपने साथ जाने को कहा, मगर उसने हाथ जोड़कर बेचैनी से कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे शौक़ नहीं है अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का। और बासिम साहब भी घर पर मौजूद हैं, वो हम लोगों को ये इजाज़त नहीं देते। अगर रात का वक्त होता तो इस बारे में सोचा जा सकता था। मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि आराम से यहीं बैठी रहो, क्योंकि बाद में अगर उनकी नज़रों में आ गई तो अपने आप को मुश्किल में फंसा लोगी। इस वक्त बाहर से नौकर भी मौजूद होंगे,
हर कोई हवेली में आता जाता रहता है और लॉन में तो वैसे भी रश लगा रहता है। वो उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो शिफा ही क्या जो किसी की बात मान जाए। वो तेजी से बाहर निकली और लॉन में भीगने लगी। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बासिम खानजादा जो कि अपने कमरे की खिड़की में खड़ा हुआ लॉन के मंजर को देखकर एक लम्हे को तो मबहूत ही रह गया, और दूसरे लम्हे जब उसकी नज़र फारूक खानजादा पर पड़ी जो कि हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था और अजीब से अंदाज में उसकी होने वाली बीवी को देख रहा था, तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियाँ उतरता नीचे गया। फारूक ने जब उसे बाहर निकलते देखा तो घबराकर साइड पर हो गया। वो हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर अनजान इंजॉय कर रही थी। जब बासिम ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। निगाहें पट से खोली तो सामने ही वो खड़ा था। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुम्हें अपनी इज्जत की जरा परवाह नहीं, मगर मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। ये सुनकर उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया। मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, बेहतर है मेरी परवाह करना छोड़ दें। मैं सोच रहा था तुम्हें इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दूंगा, मगर अब 1 हफ्ते के अंदर ही मैं तुमसे निकाह करूंगा। बेहतर यही है अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें मुश्किलात पेश आए। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहकर वो चीखते हुए अपने कमरे में चली गई। उसका बस नहीं चल रहा था वो दुनिया को आग लगा दे। आखिर ये इंसान खुद को समझता क्या है। चंद लम्हों में ही उसने अपने कमरे का हाल बुरा कर दिया। उसकी कज़न भी सामने सोफे पर बैठी हुई थी और पुरसकून अंदाज में उसको देख रही थी। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस तरह की कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना कि बासिम को ये सब पसंद नहीं आएगा और वो ज़रूर तुम्हें डांटेगा। तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम तो हमेशा उसी का साथ देती हो। मुझे हवेली वाले सारे जहर लग रहे हैं। अब इस जहर को पीना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुमने इस जहर के साथ ही सारी जिंदगी गुजारनी है। क्या मैं तुम्हें शक्ल से उल्लू लगती हूँ? वो उसकी आंखों में देखते बेचैनी से बोले। वैसे सच बताऊं तो हाँ, तो मुझे वाकई एक बेवकूफ़ लड़की लगती हो जो इस कदर अच्छा और मजबूत किरदार का इंसान नज़रअंदाज कर रही हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की वजह से। देखो, वो इंसान हमेशा मुझ पर गुस्सा करता है, रोब जमाता है। उसके होते हुए मैं कभी अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। चांदनी ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो उसकी काबू में ही नहीं आ रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और तुम मेरी मदद करोगी। तौबा तौबा बहन, मुझे तो इस मामले से दूर ही रखो। मैं इस भरी जवानी में बिल्कुल नहीं मरना चाहती। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैंने तो अपने शौहर के साथ हनीमून पर भी जाना है। वो फौरन से लिहाफ में दुबक कर लेट गई। तुम बहुत डरपोक हो और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। चांदनी के कहने पर उसके गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। उसने शाम के वक्त अपने मामा बाबा को भी कॉल की, मगर उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा निकाह बासिम से ही होगा, क्योंकि तुम लोगों की मंगनी बचपन में हो गई थी। हमने ज़बान दी हुई है और हमारे ख़ानदान में अपनी ज़बान से मुकरा नहीं जाता। अगर तुमने किसी किस्म का तमाशा किया तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। उसको अपने मामा और बाबा की बातों पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। रिश्ता ख़राब होने से बचाने के लिए वो उसकी ज़िंदगी को अजाब में झोंक रहे थे। वो छत पर खड़ी थी जब उसे जावियार की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें उस इंसान से नफरत क्यों है? ये सुनकर एक लम्हे को तो वो गड़बड़ा गई और गहरी सोच में डूब गई, क्योंकि वो मुझ पर गुस्सा करता है, रोब जमाता है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए करता है? मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मेरी इज्जत ही ना करे। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अगर इज्जत ना करता होता तो वो कब से तुमसे दस्तबरदार हो जाता।
मर्द कभी भी किसी औरत को पसंद नहीं करता जिसके बारे में उसे किसी किस्म का कोई शक हो। देखो, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, बस तुम मेरी बात का बुरा मत मनाना। वो अब गौर से उसकी सारी बातें सुन रही थी। तुमने अपनी जिंदगी के 18 साल अमेरिका में गुजारे हैं। जाहिर सी बात है तुम्हारे बहुत सी लड़कों के साथ दोस्ती भी होगी, और अगर ना भी हो तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसके बावजूद भी वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। तुम्हें पता है कि उसकी माँ यानी तुम्हारी सास इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी भांजी को बहू बनाकर लाना चाहती थी। इसने साफ अल्फाज में इनकार किया और अपनी माँ को ये बात बावर करा दी कि वो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। उसने कमिटमेंट की हुई है और वो ये कमिटमेंट किसी सूरत नहीं तोड़ सकता। जावियार चुप हो गया था, जबकि वो खिलखिलाकर हंसने लगी, इतना हंसी कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं ये सारी बातें करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा रिश्ता अपने दुश्मनों के घर करने को तैयार हो गया हो? जावियार ने एक और गहरी सांस खारिज की। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा, कोई बेवकूफ़ी करने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि ना सिर्फ तुम्हारे मामा बाबा की बल्कि उसकी भी तुम्हारे साथ बहुत सी उम्मीदें हैं। तुम्हारी शरारतें भी उसकी सर आंखों पर है, लेकिन अगर तुम वो शरारतें एक हद में रहकर करो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि उसके जाने के बाद वो नए सिरे से मंसूबे बनाने लगी। हर हाल में उसे जुमेरात की रात को यहाँ से निकलना था, क्योंकि जुमे के दिन उसका निकाह था। उस रात उसकी कज़न ने उसको कमरे में बंद कर दिया। इसको शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसको चांदनी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रही और उसके नंबर पर कॉल करती रही, मगर चांदनी ने उसके नंबर पर सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ा था कि मैं तुम्हारी किसी भी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगले दिन उन दोनों का निकाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। बासिम खानजादा अभी भी संजीदा ही नजर आ रहा था। उसके दोस्त ने उससे कहा, ज़रा तो मुस्कुरा लो, तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा। दूसरी तरफ शिफा की आंखें बार बार आंसुओं की वजह से भीग रही थी। उसके मामा और बाबा निकाह में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला किया गया था। उस रात उसने फैसला कर लिया था कि वो कुछ भी हो जाए यहाँ से भाग जाएगी। वो एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेगी जिसके साथ उसको ज़बरदस्ती बांधा गया हो। और आज उसने जब बासिम का रवैया देखा तो उसको भी यकीन हो गया था कि वो इस निकाह के लिए राज़ी नहीं है। वो सोच रही थी वो अपने साथ साथ उसकी राहें भी आसान कर देगी। रात के अंधेरे में वो हवेली से बाहर निकली कि एक काले रंग की जीप उसके करीब आकर रुकी। उसको समझने का मौका ही ना मिला। किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से अंदर खींच लिया। वो उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसको बेहोश कर चुके थे, और दोबारा जब उसे होश आया तो वो एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में मौजूद थी। सामने ही एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था। वो खबासत भरे अंदाज में इसकी तरफ देखते मुस्कुरा रहा था। इसको अंदाज़ा हो गया कि वो चौधरियों की दस्तरस में आ चुकी है। वो अब हर हाल में अपनी ज़मीनें वापस निकलवाना चाहते थे, इसलिए वो इस छोटी सी लड़की का इस्तेमाल कर रहे थे। तकरीबन 2 दिन तक वो उनके पास ही रही थी। उसका खौफ के मारे बुरा हाल था। तीसरे दिन उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी लड़की आई, जो कि जावियार की मोहब्बत थी। जावियार के कहने पर ही वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही थी और उसकी कज़न की मदद कर रही थी। उसने हवेली के पिछले दरवाजे से उसको बाहर निकाल दिया। वो गिरती पड़ती हवेली के अंदर दाखिल हुई। सब लोग ही उसकी तरफ अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे। जावियार ने आगे बढ़ना चाहा तो उसके बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और नफरत भरे अंदाज में कहने लगा, खबरदार, जो तुमने इस बदकिरदार लड़की के पास जाने की भी कोशिश की, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। सब लोग उसके किरदार पर बात कर रहे थे। जावियार ने यह सारा मंसूबा बासिम खानजादा की मदद से ही बनाया था। उसी वक्त ही हवेली का दरवाज़ा खुला और बासिम लाउंज में दाखिल हुआ। सामने खड़ी इस छोटी सी लड़की को देखकर उसका दिल सुकून से भर गया। वो मजबूत कदम उठाता उसके पास गया और अपनी चादर उसके कंधे पर फैलाते हुए सब लोगों से मुखातिब होते हुए बोला,
अगर तुम में से किसी ने भी मेरी बीवी के किरदार के बारे में कोई भी गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया था कि वहां पर मौजूद सब लोगों को सांप सूंघ गया। उसकी माँ ने कहना चाहा कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मगर उसने अपनी माँ को भी चुप करवा दिया। मेरी बीवी के साथ जो कुछ हुआ है, अगर वो किसी और लड़की के साथ होता तो वो भी यकीनन ऐसा ही करती। अगर किसी लड़की का निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ किया जाए तो वो उसे इसी तरह की हरकत की उम्मीद रखता। ये बहुत आम सी बात है। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मावनत में कोई तीसरा इंसान दखल अंदाजी ना करे। वो जानता था कि हवेली वाले अब उसकी बीवी को तकलीफ पहुंचाएंगे। इसी वजह से वो उसे लेकर शहर में मौजूद अपने बंगले में शिफ्ट हो गया। वक्त का काम था गुजरना और वो तेजी से गुजरता चला जा रहा था। शिफा जो कि सोचती थी कि वो हमेशा इस इंसान से नफरत करती रहेगी, उस दिन के बाद उसके दिल में बासिम खानजादा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। जब किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था तब उसका शौहर उसके पहलू में आकर खड़ा हुआ था और उसने इसे मान बख्शा था। इसे अब अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। बासिम खानजादा इस दौरान उसके करीब नहीं आता था। वो ज़रूरत के अलावा उससे बात भी नहीं करता था। वो उसकी तमाम चीज़ें उसके कहने से पहले ही पूरी कर देता। एक दिन वो लॉन्च में बैठा अपना काम कर रहा था जब वो उसके कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर वो बुरी तरह से बेचैन हो गया। उसने इसे अपने कदमों से उठाया और उसको एक झटके से अपने सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बासिम ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। मुझे लगता था कि आप मुझसे नफरत करते हैं। आपका रवैया देखती थी तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती थी। मुझे लगता था कि आप मुझे पसंद नहीं करते। और फिर निकाह के दिन जब आप रूड बिहेव कर रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, तुमसे नफरत नहीं कर सकता। हाँ, जानता हूँ कि मुझे मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सख्त मिजाज का मालिक हूँ। अगर तुम पर सख्ती करने के बजाय मैं तुम्हें प्यार से चीज़ें समझाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम अपने जहन पर ज़्यादा दबाव मत डालो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बासिम खानजादा की वजह से उसके मामा और बाबा ने भी उसको माफ़ कर दिया था। वो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी जिसने उसे बासिम जैसा शौहर अता फरमाया।